वेलकम टू StudyIQ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, मोरिबंड। मोरिबंड शब्द का अर्थ होता है समथिंग दैट इज लैकिंग वाइटैलिटी, अप्रोचिंग डेथ। एक तरह का डिक्लाइन आ गया है, उसके लिए हम मोरिबंड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ डाइंग, approaching death, being in a state of inactivity or obsolescence, in terminal decline के लिए हम moribund शब्द का प्रयोग करेंगे। Let's look at the usage of the word moribund. He is an actor who's trying to revive his moribund career. The peace talks are moribund. In the moribund patient, deepening stupor, that is deepening sleep, and coma are the usual preludes to death. Try though he may, he just can't seem to breathe new life into his moribund career. Breathe new life is a good usage of the word जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। Moving on to the next word of the day, high binder. हाई बाइंडर के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है एक करप्ट पॉलिटिशियन, एक करप्ट नेता के लिए हाई बाइंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट अर्थ है एक असैसिन हु इज बिलोंगिंग टू एन चाइनीज एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक करप्ट पॉलिटिशियन, एन अनस्क्रूपुलस मैन, एक असैसिन जो कि बिलोंग कर रहा है चाइनीज अमेरिकन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए भी हम हाई बाइंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड हाई बाइंडर। हाई बाइंडर, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिंट सम news about these political highbinders and about the big-time thieves. We are not aware of the presence of highbinders among the Chinese population. Moving on to the next word of the day, dastardly. Dastardly शब्द का अर्थ होता है एक coward, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डरपोक है, pusillanimous है, someone who's chicken-hearted, उनके लिए हम dastardly शब्द का प्रयोग करते हैं, unheroic. So cowardly, chicken-hearted, pusillanimous is an important synonym. Spineless व्यक्ति, unheroic जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम dastardly शब्द का प्रयोग करेंगे। Let's look at the usage of this adjective dastardly. That was a dastardly attack on innocent civilians. His dastardly conduct in critical moment haunted him for the rest of his life. He did not act at a critical moment, and that haunted him for the rest of his life. Moving on to the next word of the day, sweven. Sweven शब्द का अर्थ होता है सपना, एक vision, एक dream को हम sweven कहते हैं। So a dream or a vision that you see when you are asleep, उसके लिए sweven शब्द का प्रयोग होगा। Let's look at the usage of this noun. He saw a grimly sweven last night. So सपने को हम sweven का नाम देंगे। Moving on to the next word, vaniloquent. Vaniloquent शब्द का अर्थ होता है कि अपने बारे में ही प्रशंसा करते रहना, and that too in an egotistical way. उसके लिए हम vaniloquent adjective का प्रयोग करेंगे। Speaking of oneself especially in an egotistical way, narcissist की तरह। Let's look at the usage of the word vaniloquent. I had to drop my membership to that country club as every conversation was nothing more than a vaniloquent flapdoodle. Flapdoodle का अर्थ होता है nonsense, and that is the next word of the day. Flapdoodle इस noun का अर्थ है absolutely nonsensical thing, something that is trash, rubbish. Flumadiddle, हम लोग पहले वीडियोस में flumadiddle शब्द भी देख चुके हैं। Flumadiddle का अर्थ भी यही होता है flapdoodle. Let's look at the usage of the word flapdoodle. The speech was a lot of flapdoodle about the economy, a clear-eyed assessment of the problem, minus the usual flapdoodle was required. So nonsense means flapdoodle. Flapdoodle means nonsense. Let's look at the quiz for the day. आपको इन सारे words के meanings देखने थे। Arduous का अर्थ होता है something that is very laborious, something that is very difficult or hard. कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत difficult है, hard है, उसके लिए हम arduous शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में हर्क्यूलिन भी देखा था, दैट इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ द वर्ड आर्ड्यूअस। ब्लैंडिशमेंट का अर्थ होता है फ्लैटरी, कोक्सिंग, वीडलिंग भी बोला जाता है। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फ्लैटर समवन, ब्लैंडिशिंग हो जाता है। कार्नल मीन्स अ फिजिकल एपेटाइट, सो अ फ्लैश ऑफ बॉडी रिलेटेड टू फिजिकल एपेटाइट, तभी कार्नल सिंस भी बोले जाते हैं, फिजिकल सिंस को। डाइग्रेशन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्ट्रे अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, जब आप मेन टॉपिक
टॉपिक से हटकर किसी और जगह पे जाते हैं, उसके लिए हम डाइग्रेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। एलिसियन का अर्थ होता है समथिंग दैट इज डिलाइटफुल, यूटोपियन, समथिंग दैट इज ब्लिसफुल, उसके लिए हम एलिसियन शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रेगेरियस इज अ पर्सन हैविंग मेनी फ्रेंड्स, बहुत ही सोशल व्यक्ति जो हर किसी को अपना दोस्त बना लेता है, उसके लिए ग्रेगेरियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इम्पिंज का अर्थ होता है व्हेन यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस, मेक एन इफेक्ट ऑन और यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग, उसके लिए इम्पिंज शब्द का प्रयोग करते हैं। आप चीट शीट में दोबारा से आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दोस इन द कमेंट सेक्शन।